An utterly vulnerable and ferocious act of dispute between nations led by powerful and simultaneously weak leaders. Today, the facts that were shared can't be overshadowed as they constitute in the murder of a privileged humanity and democracy. Thank you, Email, for delivering knowledge in an impartial way. The goal of a great democracy should be fulfillment, not ease. It should be educacy, not serenity. With this utterly relevant line, we would feel thrilled to call upon the second team with the theme Shrinking Civic Space in Democracy, especially in the last decades of 20th century and early years of 21st century. Yes, have you noticed how in some democratic countries it's becoming harder to speak and protesting? Absolutely, I read news and Hungary that they're restricting NGOs and protest crime. Yes, of course, it is scary. Democracy तो खुद कहती है कि हर एक इंसान को right to speak, right to assembly है, but all our rights are shrinking day by day. And you see governments is clamping down. What is happening to our rights? बेसिकली यही तो आज का हमारा टॉपिक है, shrinking civic space in democratic countries. Hello everyone. So let's start with the topic. So before just understanding what is civic space and all, we must understand what is democracy. Well, here you see what is modern democracy. So the term democracy and modern democracy both are different. Democracy means rule by people, simply, where the decisions are made by people. But in the modern democracy, people vote for the leaders to make decisions and laws. It ensures fairness, protect rights, and prevent anyone from having too much power. This was about the modern democracy. Now we will see some institutions of modern democracy. So here the first institution is the rule of law. So rule of law basically means that everyone has the right to vote, decide any kind of discrimination on the basis of the religion, caste, and all those things. The another is judiciary. Before just understanding judiciary, let me know that we are going to explain organs of the government that are legislature, executive, and judiciary. So what happened? Legislature, the work of the legislature is to make the laws, and executive, the work of the executive is to implement those laws, and here the judiciary, which resolve the conflicts between them. The another system which come among them is the check and balance system. इसमें क्या होता है कि जो हमारी check and balance system में क्या होता है, अगर ये इंश्योर करता है कि जो हम तीन ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कि एक के पास ज़्यादा पावर ना हो जाए. So the laws which are made by the legislature, वो जो हमारी जुडिशरी है वो चेक कर सकते हैं. That is what we call a check and balance system. Another, the most important is elections. अब elections में क्या होता है, हमें पता है किसी के बाद हमारा पॉलिटिकल पार्टीज क्या अलग है. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, एंड इन दैट हम अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं जो हमें ज़्यादा सही लगता है या फिर सबसे कम गंदा लगता है ना. तो ये सब, and the most important one is civil society. We people, citizens, and so our society is. And the last is freedom and right and freedom. So for protesting, we have some rights by which we can protest, freedom of speech and all those things. And this is our freedom. Like we have the freedom to do the things. So now this was all about the democracy. So अब हम ना ये थोड़ा सा मतलब ऊपर पर से ताकि democracy एक्चुअल में होता क्या. अब हम जानेंगे कि what is civic space जिसकी हम बात कर रहे थे. So for this, here is Aksha. So what is civic space and why it is important? Civic space होती क्या है और ये जरूरी क्यों है? So civic space refers to the environment where citizens, civil society, organization and community groups can freely express themselves, associate, assemble and participate in public life. Civic space का मतलब क्या होता है कि एक कहीं कोई इंडिविजुअल है, वो अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे, उसके पास उसके राइट्स हो, वो अपना राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करे बिना किसी डर के, वही कहलाती है सिविक स्पेस. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक स्पेस. अब इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये जरूरी क्यों होती है? इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी नेटवर्क. ये जो हमारा सिविल सोसाइटी है ना, इसके नेटवर्क की ग्रोथ को इंकरेज करती है. इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स एंड डिफेंड ह्यूमन राइट्स. ये किसी भी इंडिविजुअल्स को ये इनेबल करती है कि वो किसी भी पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करें इजीली बिना किसी डर के. पब्लिक अफेयर कुछ भी हो सकता है, किसी की लड़ाई हो गई, दूसरा गलत है, सामने वाला सही है, तो वो वहाँ पर भी जो गलत है उसके अगेंस्ट जा सके. पब्लिक अफेयर्स ये होता है. फिर है
कंट्रीज के होते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। तो ये श्रिंक क्यों हो रही है, इसके कुछ इंडिकेटर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि दो लोग आपस में ऐसे पुश कर रहे हैं और हमारी जो सिविक स्पेस है वो श्रिंक हो रही है। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स। Laws and policies that limit freedoms can include restrictions on assembly and association. अब restriction on assembly, हम अपनी मर्जी से कहीं assemble भी नहीं हो सकते। I remembered an incident that took place before 2 or 3 months before. Like वहाँ पर क्या हुआ था कि रेप केसेस हमारे जो चले रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक कैंडल मार्च निकाली थी शाइनिंग स्टार स्कूल के स्टूडेंट्स ने। तो वहाँ पर बेसिकली 2 और 3 किलोमीटर्स की हमारी वो थी कैंडल मार्च। तो उसमें भी मुझे तब पता चला कि हमें कहीं असेंबल होने के लिए भी कि किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी SDM को, हमने उनसे परमिशन ली थी। तो मुझे नहीं पता था पहले कि हमें कहीं गैदर होने के लिए, असेंबल होने के लिए भी किसी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। मीडिया रेगुलेशंस एंड सेंसरशिप, हम मीडिया पे वो भी पोस्ट नहीं कर सकते जो हमारी मर्जी करती है। मतलब हम कंट्रोल है हमारा, मतलब अगर हम बात करें तो हमारा पूरा कंट्रोल करता है हमें अपना गवर्नमेंट। लॉज लिमिटिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम बिना किसी अपनी मर्जी से मूवमेंट भी नहीं कर सकते, इस पर भी हमारे लॉज होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑनलाइन एक्सप्रेशन, हम ऑनलाइन कुछ पोस्ट या ब्रॉडकास्ट या पब्लिश नहीं कर सकते जब तक कि हमें कोई देख न। नाउ एक्सप्लोर सम केस स्टडी। मेजरिंग सिविक स्पेस, अब हम सिविक स्पेस को मेजर कैसे करते हैं। यहाँ पर एक कुछ टर्म दिए हैं, ओपन, नैरोड, ऑब्स्ट्रक्टेड, रिप्रेस्ड एंड क्लोज्ड। ओपन मतलब पूरा वहाँ पर हमारा फुल फ्रीडम है कि हम अपनी, मतलब हमें अपनी पूरी बात रखने का वहाँ पर है कि हम कर सकते हैं, जो हमें बोलना है बोल सकते हैं, किसी भी पब्लिक अफेयर में कुछ भी करना है कर सकते हैं। सेकेंड है नैरोड, यहाँ पर बेसिकली मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टेड में मिडिल होता है, रिप्रेस्ड में ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, एंड क्लोज्ड में तो बिल्कुल है ही नहीं कि मतलब वहाँ पर तुम अपनी बात रख ही नहीं सकते, तुम्हें दूसरे के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। नो सिविक स्पेस, एक्सट्रीम कंट्रोल एंड सप्रेशन। श्रिंकिंग सिविक स्पेस इन हंगरी, एज यू ऑल नो हंगरी इज अ कंट्री इन यूरोप। तो वहाँ पर क्या हुआ, रिसेंट ईयर्स में हंगरी हैज एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट इरोजन ऑफ सिविक स्पेस, इम्पैक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड असेंबली। वहाँ पर कुछ लॉज में हमारी रेस्ट्रिक्शंस दिखी हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब वहाँ पर ये लॉज माने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने का जो फ्रीडम है वो लोग वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। एसोसिएशन, असेंबली, वहाँ पर असेंबल नहीं हो पा रहे हैं। तो की लॉज एंड एक्शंस like NGO requires NGOs receiving foreign funding to register as foreign funding organization, creating operational hurdles. As you all know what is NGOs, non-governmental organizations. तो NGOs में क्या होता है कि तो जो फॉरेन कंट्रीज थी वहाँ पर NGOs में कुछ फंडिंग होती है कि NGOs जो होते हैं ना फंड करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो वहाँ पर फंडिंग भी है। NGOs को ये रेस्ट्रिक्शंस थी कि कितनी फंडिंग हो रही है, क्या फंडिंग हो रही है, वहाँ पर मतलब उन्हें पूरे एक डेटा देना था, तो ये रेस्ट्रिक्शंस थी। लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑन नेशनल सॉवरेनिटी टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हंगरी रेस्ट्रिक्शंस देयर एक्टिविटीज। यहाँ पर कुछ ऐसे टारगेट्स रखे गए थे इंटरनेशनल हंगरी में, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ पर वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनकी एक्टिविटीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। थर्ड इज protest ban law imposes a blanket ban or protest in public spaces with heavy fines for participants। इस लॉ में क्या हुआ था कि बेसिकली जो हमारे लॉ प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉ होते हैं यहाँ पर वो बैन कर दिए गए थे, मतलब हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे हंगरी में। फोर्थ इज हायर एजुकेशन लॉ अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस किए तो अंडरमाइंस एकेडमिक फ्रीडम लिमिटिंग यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंस। यहाँ पर जो था कि एजुकेशन में क्या अमेंडमेंट कर दिए थे कि फॉरेन कंट्रीज से कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे भी कोई भी कोलैबोरेट नहीं करेगी, कोई कनेक्शन नहीं रखेगी। लास्ट इज कंट्रोल ओवर मीडिया। मीडिया पर भी क्या कंट्रोल है हंगरी का। गवर्नमेंट कंसोलिडेशन ऑफ मीडिया आउटलेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैव स्टिफल्ड प्रेस फ्रीडम। यहाँ पर भी क्या था, वही कि हम अपनी मर्जी से कुछ पोस्ट या ब्रॉडकास्ट या कुछ नहीं कर सकते। अब हंगरी को हमने रेटिंग दी गई है कि 100 में से 50 है, यानी ऑब्स्ट्रक्टेड है। यहाँ पर कुछ बैरियर्स हैं हंगरी में जो अभी भी हैं रिसेंटली। लेट्स एग्जामिन द स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर ये जो
2000 से 2004 तक स्टेबल रही है हमारी श्रिंकिंग स्पेस, लेकिन आफ्टर 2004 जो हमारी श्रिंकिंग सिविक स्पेस है वो हमारी श्रिंक होती गई, मतलब डिक्रीज होती गई। श्रिंक का मतलब बेसिकली कि रिड्यूस हो रही है या कम हो रही है। तो डे बाय डे जो हमारी सिविक स्पेस है वो श्रिंक होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। इम्पैक्ट ऑन सिविल सोसाइटी, अब जैसे कोई चीज़ होती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसा क्लास में नहीं पढ़ेंगे, घर में नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि हमारा उसका इम्पैक्ट एग्जाम्स में दिखेगा, उसके टेस्ट सीरीज में दिखेगा। तो ऐसी जो स्पेस हमारी श्रिंक हुई है उसका इम्पैक्ट हमें सिविल सोसाइटी पर दिखा। रिड्यूस फ्रीडम, हमारी जो फ्रीडम हुई है वो कम हुई है। कैसे? लेस फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड आइडियाज, हमारे पास अब कम फ्रीडम है कि हम अपने काफ़ी हद तक हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर वीकर एनजीओज, जो हमारे एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कमजोर हुए हैं। हार्डर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट एंड एडवोकेट। मोर कंट्रोल, गवर्नमेंट में गेन मोर पावर रिड्यूसिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। गवर्नमेंट के पास क्या है? ज़्यादा पावर कि वो कुछ भी कर सकता है, उनके पास ज़्यादा पावर है। ह्यूमन राइट्स, इंक्रीज ह्यूमन राइट्स वायलेंस एज डिसेंट इन सप्रेस्ड। ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो भी के वायलेंस इंक्रीज हो रहे हैं। जब लोगों को लग रहा है कि उनकी आवाज़ें सुनी नहीं जा रही हैं, उनकी आवाज़ों पर दबाव है, तो लोग क्या कर रहे हैं? वायलेंस के रूप में क्लैशेस कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को मतलब ये चाह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। डू यू थिंक सिविक स्पेस इज श्रिंकिंग इन योर कंट्री? क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में भी क्या कोई जो सिविक स्पेस है वो श्रिंक हो रही है? सोचना इस बारे में। नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक। So we are going to start with role of technology in democracy. So आजकल इतने सोशल मीडिया में like कितना इफेक्ट कर रहा है डेमोक्रेसी को। हाँ, पॉलिटिशियंस भी हमारे कॉल आउट करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, पॉलिटिशियंस को इजीली सोशल मीडिया कॉल आउट करते हैं। लेकिन मुझे याद है 2019 में कितनी सारी फेक न्यूज़ फैलाई थी डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जिसमें सब कुछ मैसेज कर दिया। हाँ, तो मेरे हिसाब से लाइक सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों है एंड अगेन इट डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे यूज करते हैं। और जैसे पॉजिटिव लाइक जैसे कुछ यूट्यूबर्स लाइक कुछ हमारी मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में बिजी है, बट देयर आर सम यूट्यूबर्स व्हिच आर यूजिंग इट एज अ गुड वे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज करें। सोशल मीडिया काफ़ी मदद करते हैं प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का। लेकिन सेम साइड इको चैम्बर में तो है। इको चैम्बर ये क्या होता है? अरे यहाँ ये होता है कि जो आपके ओपिनियन से मैच करती है, आपको कोई चीज़ें दिखाई जाती है ताकि और कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। तो सब लोग सोशल मीडिया पे जाते होंगे ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर सब है ना। ऑफ कोर्स बोलेगा कोई नहीं, लेकिन सोशल मीडिया हर कोई यूज करता ही है। तो सोशल मीडिया हम बोलते हैं ना कि आजकल हर एक चीज़ में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो डेमोक्रेसी में इसका कैसे रोल है ये जानते हैं। हाउ सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग द डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया's impact on democracy is complex and multifaceted issue. अब हर एक चीज़ के दो साइड्स होते हैं। एक कॉइन को ले लीजिए, एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो हम एक को नेगेटिव मानते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को थोड़ा मिडिल में है। ना ही ज़्यादा नेगेटिव है, ना ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो while many people believe is that being beneficial for democracy. अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अच्छा नहीं है। अब अच्छा कैसे है? अगर कोई पढ़ाकू बच्चे हो गए यहाँ पर तो सोशल मीडिया से काफ़ी लोग पढ़ते भी है। पढ़ता है कोई? पढ़ते हैं। और फॉर एग्जाम्पल PW हो गया, नेक्स्ट टॉपर्स हो गया, और कुछ लोग ऐसे भी जो यूज़ करते हैं, रील्स ला रहे, स्क्रॉल हो रहे, तो ऐसे लोग ये सब पढ़ते हैं। तो जो सोशल मीडिया है वो आपकी पढ़ाई में यूज़ हो सकता है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। फॉर जॉब्स अपॉर्चुनिटी काफ़ी आती है सोशल मीडिया में। लेकिन दूसरी साइड क्या होता है डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस के टाइम में सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ होता है। अब वो कैसे होता है हम ये जानते हैं। सब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेमोक्रेसी। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन। तो जब हमारा इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में अगर नॉर्मली भी देखिए तो दो ग्रुप बन जाते हैं। एक तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स पार्टी है, एक वाई पार्टी है। तो कुछ लोग एक्स पार्टी के फेवर में होंगे, कुछ लोग वाई पार्टी के फेवर में होंगे। अब जो एक्स पार्टी के फेवर में होगी ऑफकोर्स वो वाई पार्टी के अगेंस्ट होगी, और जो वाई पार्टी के फेवर में होगी वो एक्स पार्टी के अगेंस्ट होगी। तो इससे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। कोई वाई पार्टी की बुराई करता है, कोई एक्स पार्टी की बुराई करता है, इसके थ्रू सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई भी
एग्जाम्पल कोई बच्चा पढ़ाई की वीडियो देखता है तो उसके फीड में पढ़ाई की रील्स आएगी, पढ़ाई की वीडियोस आएगी। लेकिन कोई कार्टून देखता है तो उसके फीड में कार्टून आएगा। वैसे ही कुछ बच्चे या फिर मेरी हम देखें तो एडल्ट जो न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं तो उनके फीड में उस पॉलिटिकल पार्टी की बुराई आएगी या उसकी कुछ तारीफ आएगी। तो अगर उसके अगेंस्ट है तो उनके बीच में क्या होता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुछ व्यूज कुछ लाइक्स के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐसे फैलाते हैं ताकि वो लोग उस पार्टी के अगेंस्ट हो जाए, वो कम्युनिटी उस पार्टी के अगेंस्ट हो जाए। क्या होगा, उस पार्टी को वोट कम पड़ेगी, वोट कम पड़ेंगे तो उनकी जो सपोर्टिव पार्टी है वो जीत जाएगी। तो इसके थ्रू फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है। पोलराइजेशन एंड डिवीजन। अब अगर थोड़ा लॉजिक लगाएं तो जब फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो जो लोग उसके सपोर्ट में थे या तो उलट जाएंगे कि भाई तुमने कैसे बोलते हो हमारी पार्टी के बारे में ऐसा, या फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा फैलती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक कार्टून को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सिंचन के फैन है, कोई डोरेमोन का फैन है, तो अगर आप सिंचन की कार्टून के बारे में कोई बुराइयाँ करेंगे तो कौन जो उसको लाइक करता है वो गुस्सा हो जाएगा कि भाई तुमने मेरी फेवरेट कार्टून या मेरी फेवरेट प्रोग्राम के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। तो इससे क्या होगा कि फ्रेंडशिप टूट जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपकी उससे लड़ाई हो गई है तो आप अपने बाकी क्लासमेट से बोलेंगे कि भाई तुम उनसे जाके बात मत करना। तो इससे एक कम्युनिटी बन जाती है जो अगेंस्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर पार्टी की। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में रिलीजन, अगर हम कोई भी रिलीजन देखें, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और सिख, तो उनके बीच में बहुत लड़ाई जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप टेम्पल्स या मस्जिद को लेकर ले लीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर ले लीजिए, तो वो आपस में दंगे हो जाते हैं, लोग मरते हैं, किसी लोग की जान जाती है, किसी लोग को पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं। तो उसके थ्रू बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं लोगों के बीच में। मैनिपुलेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन सेम कोई चीज़ है कि मैनिपुलेट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन चल रहे हैं तो सरकार जो है वो इलेक्शन को देखे या जो लोग लड़ रहे हैं उनको देखे, उसकी तो दिक्कत हो गई। ऑफकोर्स अगर कोई भी चीज़, अगर वो गवर्नमेंट अच्छी है, वो गवर्नमेंट बुरी है, लेकिन ऑल ओवर वो पूरी कंट्री को देखी जो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कंट्री में लड़ाइयाँ होगी तो वो किसको फोकस करेगी, इलेक्शन पे, या फिर वो लोगों को बोलेगी कि भाई तुम लड़ो मत। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाता है और सब मिक्सअप हो जाता है, सब मैच हो जाता है, जिससे गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं कर पाती। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपको फ्रीडम नहीं है एक्सप्रेस करने। अब क्या होता है कि आप बोलेंगे हमें तो फ्रीडम है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से कुछ बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स भी, लेकिन आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके कुछ नहीं बोल सकते। आपके पास वो फ्रीडम नहीं है कि आप डायरेक्ट अपनी कम्युनिटी किसी गवर्नमेंट को बोल दो कि भैया गलत कर रही है। तो हम तो फिर भी काफ़ी कुछ बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत माइनॉरिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम स्लम्स में, आपको पता है जो एशिया है उसमें सबसे बिगेस्ट स्लम मुंबई में, इंडिया में एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम है, जहाँ काफ़ी लोग हैं जिनके पास रहने को घर तक नहीं है। तो उनकी भी तो कुछ नीड्स होगी, आपकी नीड्स है फोन, आपकी नीड्स है बुक्स, आपकी नीड है फूड, बट उनको तो कुछ भी नहीं मिल पाता। तो उनका जो फ्रीडम, जो राइट्स है ना वो दबते जा रहे हैं, उनको राइट ही नहीं मिलता बोलने का। तो इससे क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो जो मेरी सरकार करती है उनका ध्यान होता है इलेक्शन में इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने की, लेकिन जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको तो कोई ध्यान ही नहीं मिल पाता। एंड द मेन इज प्राइवेसी। अब आपको पता है फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम ले लेते हैं, सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो क्या होता है कि जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ आप लाइक करते हैं, आपके फीड में वो नहीं आएगी। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी प्राइवेसी पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो इंस्टाग्राम, जो भी हम प्लेटफॉर्म ले रहे हैं टेक्नोलॉजी का, हमारा AI का प्लेटफॉर्म, सब में जो भी चीज़ आप देखते हैं वो एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। वो सब रिकॉर्ड होगा कि हाँ इस इंसान को इस टाइप की चीज़ें पसंद है, तो उस इंसान को उसी टाइप की रील, उसी टाइप की वीडियो दिखाई जाएगी ताकि वो और ज़्यादा से लाइक करे, शेयर करे और कॉन्टेक्ट। अब पॉजिटिव तो हो गया, सॉरी नेगेटिव तो हो गया, बची पॉजिटिव। तो और इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है, वो है इंक्रीज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब वही चीज़ है, अगर आप नेगेटिव साइड को देखेंगे आपको नेगेटिव इश्यूज मिलेंगे, अगर आप पॉजिटिव साइड को देखेंगे आपको पॉजिटिव इशू मिलेंगे, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस साइड को जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाइयाँ हो, तो ऑफकोर्स आप नेगेटिव साइड को जाइए, लेकिन अगर आपको उसका मिसयूज नहीं करना है तो उसके यूजफुल इफेक्ट क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम की चैट्स पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ भाई इसने तो बोल दिया कि ये सरकार करेंगे, इसको तो वोट ही नहीं करना है। खुद से सोचिए ना कि वो
आपके पास इतना लॉजिक लगाना चाहिए कि हमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है तो उसको सिर्फ शेयर नहीं करना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा शेयर करें। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो सब होगी, उनको बहुत दिक्कतें होगी। So we should have a habit to read things, improve political engagement. Social media has enabled citizens to connect with politicians, participate in online discussions and mobilize around social causes. अब क्या होता है ना कि सोशल मीडिया का एक चीज आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखते हैं किसी इंसान के साथ गलत हो, जो चीज गलत है वो तो इतनी जल्दी फैलती कि पूछिए मत, लेकिन जो चीज सही है ना उसको कोई मतलब शेयर नहीं करता है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखते हैं किसी को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, किसी का गलत हो रहा है, तो आप उसको शेयर करिए, आपको शेयर करना नहीं है इतना, तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी, न्यूज़ इसमें आएगी, तो गवर्नमेंट हमारे उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, उस इंसान की, उस कम्युनिटी जिनकी थोड़ी हेल्प हो सकती। तो एम्प्लॉइंग एम्प्लीफाइंग मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस क्या होती है? दबी हुई आवाज़, जो आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती है। अभी हमारे इंडिया में बहुत, इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी लोग हैं जिनको तो मतलब कुछ हम मानते ही नहीं है, हमारे लिए वो 1% भी नहीं है, और इतने सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ आज तक सुनी जाती ही नहीं है। तो सोशल मीडिया के थ्रू एक ये भी है कि काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी नॉर्मल अब हम देखिए चैनल्स वगैरह है जो इन लोगों की आवाज़ को उठाने में हेल्प करते हैं, ताकि इन्हें थोड़ा सा राइट्स तो मिले, इनकी थोड़ी सी नीड्स तो पूरी हुई। ऑफकोर्स वी ऑल थिंक कि हमारी ये नीड है, वो नीड है, लेकिन यू नो व्हाट, हमारे पास जितना है वो काफ़ी है, कुछ लोगों के पास उसका 0.5% भी नहीं है। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम उन लोगों की आवाज़ को निकाल सकते हैं ताकि गवर्नमेंट या कोई भी उनकी हेल्प करे। अब केस बेस्ड मैनिपुलेशन ड्यूरिंग इलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफकोर्स इलेक्शन के टाइम में सोशल मीडिया पूरा भर जाता है, फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो मनी पावर, ऑफकोर्स पैसा तो सबके लिए ज़रूरी है ही, इवन पैसा नहीं रुपया, पैसा तो बंद हो गया, तो मनी का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं, पर्सनली कोई मत लेना, लेकिन हाँ ऑफकोर्स एक पार्टी है एक पार्टी है बी के थॉट्स बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उनके पास पैसे रुपीज़ नहीं है। ए बोलते हैं कि तुम हमें वोट दे दो, हम अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें फ्री में ये बांट देंगे, तुम्हें फ्री में वो बांट देंगे। हम किसको वोट देते हैं? ए को। हम कभी जानते नहीं है कि वो करेगी कि नहीं करेगी, हम सिर्फ देखते हैं पैसा। आजकल के टाइम में जिसके पास पैसा है उसकी पार्टी, जिसके पास थॉट्स है उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। इवन आपको पता है कि कितनी पार्टीज ऐसी है जिनके पास थॉट तो बहुत है, हथेली थॉट्स है, इवन वो कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन नहीं, हम जाएंगे पैसे वाली पार्टी की तरफ, क्योंकि उनके पास पैसा है, दिमाग हो ना हो, पैसा इंपॉर्टेंट है। कास्ट एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, मैं नेम नहीं बोलूँगी, इसमें नहीं लगता है, तो क्या होता है कि एक बना देगा हिंदू की पार्टी, एक बना देगा मुस्लिम की। मेनली इंडिया में ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक हिंदू सपोर्ट करेगा, एक मुस्लिम सपोर्ट करेगा, वो उनको भड़काएगा कि नहीं भाई उस मुस्लिम ने ऐसा किया, वो उसको भड़काएगा कि नहीं उस हिंदू ने ऐसा कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट करवा देंगे, भिड़ा देंगे, सबको ऐसे ही चल रही। तो उससे क्या होता है कि ऑफकोर्स कितनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, हम सोचते भी नहीं है, बस भाई ये टीवी में आ रहे थे 4 लाइक भेज दो, इसको पढ़ना नहीं है, बस भेजना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, लड़ाई करवाने वालों की। हम कभी नहीं सोचते कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बस ऐसे शेयर कर दो। हम एजुकेटेड है, लेकिन क्या फायदा उस एजुकेशन का जब आप एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी नहीं सकते। मसल पावर तो पता होगा, जिम कौन चाहता है यहाँ, जिम वाले बच्चे। ऑफकोर्स अब लोग क्या करते हैं आजकल के नॉर्मली, बस जिम चल जाएंगे, मसल वगैरह बाइसेप ट्राइसेप बना के फिर इसको पकड़ के लो। तो क्या होता है हमारे उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, वोट बाई करती है, ठीक है, वोट को खरीदती है, क्योंकि थॉट्स उनके पास है नहीं, पैसा है, पैसे से वोट खरीदेंगे। अब खरीदते रहते, एक तो होते तुम लोगों को डरा दो, धमका दो, पीट दो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं सिद्धिंग समझे, अकड़े हुए एकदम, उनको कितना पीट लो वो मतलब बात आती नहीं है, उनको चाहिए पैसा। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक तो बांटती है पैसा, ठीक है, दूसरा जो गरीब लोग उनको बांटती है फूड, तीसरे वाले कैटेगरी के लोग जो होते एकदम नशे में धुत, उनके लिए आगे है कट्टे भर भर के बोतलें। ये सच्चाई है, मैं अपने मन से बना रही हूँ। अगर आप देखें ना
ठीक है, ऑफकोर्स उनको खड़ी क्यों हुई है जीतने के लिए। आप एक कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं क्यों? जीतने के लिए। कुछ लोग होते हैं सीखने के लिए, लेकिन नहीं। अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो ऑफकोर्स उसके पैसे बहुत लगेंगे, इलेक्शन से बहुत पैसे लगते हैं, और खुद से पैसे खुद लगाएगा जीतने के लिए ऑफकोर्स। तो जीतने के लिए क्या करता है? थॉट्स है नहीं, कुछ है नहीं, बस जीतना है, पैसे चाहिए, लोगों को पैसे बांटो, उनकी नीड्स पूरी करो, वोट बाय करो, वोट को खरीदो, और डराओ धमकाओ कुछ भी करो, बस वोट खरीदने हैं उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, वोट खरीदने हैं। तो हम, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, हम पे अभी तो सब बच्चे ना, अभी 18+ होने के बाद वोट, तो ऑफकोर्स आपके पास भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको, लेकिन आपको एक दिमाग होना चाहिए कि 1-2 महीने की नीड्स पूरी कर सकते हैं, इवन 1-2 साल की भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जिंदगी का क्या? एजुकेटेड बनो, पढ़ो लिखो, खुद कमा लो। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन इन इंडियन इलेक्शन। अब मैनिपुलेशन किसके थ्रू होता है? या तो लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह में कोई भी घर, कोई भी दुकान वगैरह पे टीवी लगा देते हैं, वहाँ उनकी पार्टीज के लोग कलेक्ट होते हैं, वो आके मीटिंग करते हैं, सोचते हैं कि कैसे वोट खरीदने हैं, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है। वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत बड़े होते हैं, फेसबुक में ग्रुप्स बन जाते हैं, इंस्टाग्राम में ग्रुप्स बन जाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स जो हमारे हैं, ट्विटर वगैरह सब में ग्रुप्स बनते हैं, फेक न्यूज़ ऐसे फैलती है, बस फैली है। तो इवेंट है कि 2019 का इंडियन जर्नल इलेक्शन। 2019 में अगर आपने सुना हो तो ये फेक न्यूज़ का बहुत ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए सोशल मीडिया पे। मान लो कोई बच्चा ना कार्टून भी देखता है ना, उसमें भी फेक न्यूज़ बस फेक न्यूज़। तो इससे क्या होगा ना, एक तो कॉन्टेक्ट, अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े तो इंक्रीज कम्युनल टेंशन एंड वॉयलेंस ऑफकोर्स। अगर कोई चीज़ फेक है, फिर 2 कम्युनिटी है तो लास्ट में पहले तो बात करेंगे, फिर बहस होगी, लास्ट में लड़ाई तो होती ही होती है, लोग मरते हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सब होता है सिर्फ वोट्स के। ठीक है, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है। द मेन थिंग इज ट्रस्ट। अगर आप किसी को वोट कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ एक ट्रस्ट से वोट करते हो कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी की नीड पूरी करे, उसको ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये मेरी नीड पूरी करेगा, मुझे इसको वोट देना है। तो जब इतने वॉयलेंस वगैरह हो जाते हैं तो लोगों की ट्रस्ट उठ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। काफ़ी लोग तो वोट भी नहीं करते। अब वोट नहीं करेंगे तो वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? वोट देना इज इम्पॉर्टेंट, बट किसको वोट देना है, क्या सोच के देना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो पढ़ लिख के अगर आप किसी को मतलब एक फिक्स कर दो कि हाँ, क्योंकि 100% तो कोई सही नहीं होता, लेकिन 100% कोई गलत भी नहीं होता। अगर आप हर एक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। मनी डजंट मैटर, the thought, the ideas matter. Okay, potential impact on election outcomes. Of course, ये सेम ही चीज़ मैंने आपको बताया कि इफेक्ट पड़ते हैं। अब जो गवर्नमेंट है अगर वो संभाल रही हो, किसको देखे? वो अपने इलेक्शन पे वोट करें, मतलब फोकस करें, वो लोगों को खरीदने पे फोकस करें, या लोगों को भिड़ने से बचाएं। क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। अगर कोई इलेक्शन के टाइम बन रहा है तो उसका एक वोट मैटर्स अ लॉट, एक वोट तो जा रहा है ना, तो उसमें भी गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट सोचती है कि भाई लोगों को भिड़ने से बचाना भी है, साथ में वोट भी चाहती है, तो उनको सब मैनेज करना। अब इंडिया का स्पोर्ट देखिए तो अभी अक्षर ने आपको बताया था कि अलग अलग होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं एकदम, जहाँ हमारे राइट्स ही नहीं है बोलने का, कुछ ओपन होते हैं, कुछ बीच के होते हैं। तो इंडिया को अगर आप रेटिंग दें तो 100 में से सिर्फ 31 नंबर, मतलब सिर्फ 31% हमें अधिकार है कि हम अपनी बातों को रखें। इवन हमें तो काफ़ी अधिकार है, कुछ लोगों को तो 0% अधिकार है जो एकदम माइनॉरिटी में है। तो अगर आप ऑल ओवर देखते तो रिप्रेस कंट्री है, रिप्रेस मतलब जहाँ बहुत थोड़ा सा अधिकार होता है लोगों को अपनी बातों को रखने का, लोगों को कुछ बोलने का, सरकार से गवर्नमेंट से कुछ मांग करने। ईस्टोनिया डिजिटल डेमोक्रेसी सक्सेस। ईस्टोनिया नाम सुना है इसने? ईस्टोनिया, ई फॉर यूरोप, ये एक यूरोप में कंट्री है। तो इसने क्या किया, एज आई टोल्ड यू कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो ईस्टोनिया ऑफकोर्स हर एक कंट्री की बात है, सिर्फ इंडिया की नहीं है। टेक्नोलॉजी हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों ने मैंने आपको बताया। तो ईस्टोनिया ने क्या किया, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट उठा के अपनी डेमोक्रेसी में लाए ताकि लोगों को ना कुछ सेफ्टी, कुछ राइट्स मिल सके, उनका थोड़ा एक्सपेंड हो जाए। ई वोटिंग, ई गवर्नमेंट सर्विसेज, ई रेसिडेंस, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए, उसमें 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप रीड कर सकते हैं। ई वोटिंग में क्या होता है कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप हैं, आपका जो हमें पता होगा कि हमें करेक्ट जगह मिलती है, हम जाके वोट करना होता है, एक बूथ मिलता है करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, बच्चा तो नहीं करेगा वोट,
बड़ा है, कोई एल्डर है, वो उसका जहाँ उसको जगह मिल रही पोलिंग बूथ, उसका रामनगर है, उसको किसी एमरजेंसी किसी कारण उसको नैनीताल जाना पड़ रहा है, तो उसका वोट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी वोट नहीं सकते, जहाँ आपको जो पर्टिकुलर जगह आपको मिली है आप वहीं पर वोट करेंगे। तो उससे क्या होगा, उसको वोट वेस्ट होगी, तो वो नहीं मिल पाएगा। एमरजेंसी किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो गया, वोट नहीं कर पा रहा है, तो ऑफकोर्स उसका एक वोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट जाएगा। मे बी उसका वोट काफ़ी कुछ कर सकता है, एक वोट से लोग जीत भी जाते हैं, मतलब अगर परसेंटेज बढ़ी तो उसके थ्रू इन्हें क्या किया कि इन्होंने एक साइट बना दी जहाँ लोग ऑनलाइन वोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को इमरजेंसी है तो वो ऑनलाइन वोट वगैरह कर सकते हैं। इन्होंने ऑनलाइन इस कंट्री में ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करी, टैक्सेस कम करे थोड़े से, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को निकाला, माइनॉरिटी में जो लोग हैं, ताकि उनको भी राइट्स मिले, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वली सब कुछ डिवाइड हो। और इन्होंने लोगों की बातें सुनना स्टार्ट किया, जिससे इनकी डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छी हो गई। बट डू वी लर्न, हमने क्या सीखा? कुछ सीखा? अब कॉर्ड हमने सुना है तो कुछ ना कुछ सीखना ही होगा। तो आई वुड लाइक टू फ्लो टिल नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट, हमने अभी सिविक स्पेस पर हमने देखा, शेपिंग सिविक स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, एंड ये देखा, और सोशल मीडिया का रोल देखा डेमोक्रेसी। नाउ दिस इज द लास्ट एंड द थर्ड फेज ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, दैट इज we are going to discuss about the flaws of the democracy. So before just understanding it, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं डेमोक्रेसी के। देखो पहले जो हिस्ट्री आई थी, मतलब डेमोक्रेसी आई थी, वो आई थी ग्रीस से। नाउ सो ग्रीस इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पे सबसे पहले इलेक्शन कैसे हुए थे ना, कि ग्रीस में there is a city Athens, so there were 50,000 people and they elect for a policies, वहाँ पे कोई पॉलिसीज वगैरह बनानी होगी तो उसके लिए उन्होंने इलेक्ट करा था। वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ क्या है? मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। हम नहीं करते, हम डायरेक्ट वोट वगैरह नहीं देते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया था। फिर जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उन्होंने सोचा कि तब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी इश्यूज के बारे में जाने। नाउ तो देखो जो ग्रीस है ना, वो फिलॉसफी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ हियर कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करा। वन अमंग देम वाज सोक्रेटिस। सो सोक्रेटिस जो थे वो मतलब बहुत क्रिटिसाइज करते थे डेमोक्रेसी को। नाउ उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था प्लेटो, उसका नाम हम जानेंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे अभी। नाउ उन्होंने एक सिनेरियो बताया, उसके अकॉर्डिंग मतलब एक डेमोक्रेसी बेस का सिनेरियो है, वो मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना और फिर मुझे बताना कि अकॉर्डिंग टू यू क्या डिसीजन होना चाहिए। सपोज यू आर इन द मिडल ऑफ द सी, आप एक बोट में, मतलब शिप है कोई, उसमें बहुत सारे लोग हैं, स्टॉर्म वगैरह आ रहा है, थोड़ा तूफान वगैरह है। नाउ अब इलेक्शन होता है मतलब शिप में कि हमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान से, अब बात आती है कैप्टन कौन होगा, कौन बोट चलाएगा। तो आप जिसको वोट देंगे जो ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर आपकी नीड्स को पूरी कर रहा है, या फिर जिसको नॉलेज है कि कैसे शिप चलाई जाती है, किसको वोट देंगे आप? जिसको नॉलेज है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इन दिस वी वोट टू द वन पर्सन जो हमारे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है अकॉर्डिंग टू द सोक्रेटिस। एंड यहाँ पे बात आती है ना कि वो पर्सन, अब देखो इससे सोक्रेटिस कहने का मतलब ये नहीं था कि जो हमारे एलाइट पर्सन है सिर्फ वो ही जाएं आगे, मतलब जिनको नॉलेज है। ऐसे तो बहुतों को राइट नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुतों के पास एजुकेशन नहीं होती है, तो उनका मतलब ये नहीं था। बट ये था कि जो वोट दे रहे हैं ना, मतलब कि हम सिटीजन वगैरह, वो ही फोकस मोर ऑन दैट कि वो इन्फॉर्म होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किसको वोट देना है। बट जो लोग होते हैं अगेन दे आर इन्फ्लुएंस्ड इमोशन से। उन्होंने फिर से एक एग्जाम्पल, एक स्वीट मेकर है, मिठाई वगैरह बनाया, एंड ही इज अ डॉक्टर। दोनों मान लो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स खड़े हैं और आपको उनको वोट देना है। दो चॉइसेस है, एक स्वीट मेकर और एक हमारे एक हो गए डॉक्टर। तो स्वीट मेकर्स क्या होते हैं ना कि मतलब वो बोल रहे कि मैं देखो तुम्हें मिठाई वगैरह देता हूँ, मेरी मतलब बहुत मीठी चीज़ें बोलता हूँ, ऐसा सब बोला। और ये जो डॉक्टर है वो तुम्हें दर्द वगैरह पहुँचाता है और मतलब बहुत तुम्हें हर्ट करता है, और चीज़ें तुम्हें इसे वोट नहीं देना चाहिए। और डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा हाँ मैं दर्द इसलिए पहुँचाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा अच्छा कर रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, यू विल स्टे लॉन्ग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लोग क्या करते हैं, लोग इन डेमोक्रेसी व्हाट हैपन कि वो उस डॉक्टर को
कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है डेमोक्रेसी में। सो इसलिए जो सोक्रेटिस थे वो ये सोचते थे कि जो वोटिंग है ना वो एक स्किल है, और स्किल लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए, उनको सिखाई जानी चाहिए। सो इट शुड ऑल्सो बी टीच। नाउ इसी के साथ ना हम अपने कुछ फ्लॉज के साथ चलते हैं डेमोक्रेसी के। सो हियर द फर्स्ट फ्लॉज नेम, डेमोक्रेसी इज ओनली एज नोबल एज एंड रीजनेबल एज अ सिटीजन, which means the quality of the democracy is depend on the quality of the citizens. Citizens जितने ज़्यादा इन्फॉर्म रहेंगे उतनी बेटर हमारी डेमोक्रेसी होगी। जो प्लेटो है ना वो भी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो वैसे तो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और इसके अगेंस्ट जाते थे। वो कहते थे डेमोक्रेसी इज द रूल बाय इग्नोरेंस। इफ एवरीवन विल वोट इन इलेक्शन विदाउट हैविंग नॉलेज या स्किल की वोट कैसे करा जाता है, तो इससे हमारा डेमागॉग अराइज हो जाएगा। अब वो कौन है डेमागॉग? सो बेसिकली ऐसे लीडर वो जो पावर है वो हमारे इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके मैनिपुलेट करके आते हैं। उनको पता है इस पब्लिक को ना मतलब कुछ नहीं चाहिए, उनको एजुकेशन वगैरह नहीं चाहिए, उनको काम की चीज़ें नहीं, मतलब उनको क्या चाहिए ना कि जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। दैट कैन बी लाइक हमें अगर मतलब एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी के लिए मे बी लाइक कि मूवीज देखना हो रहा है या फिर मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो वही चीज़ें करते हैं और उसी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और वोट हासिल कर लेते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन जाके अगर किसी को रिलीजियस बेसिस पे ज़्यादा अपना कनेक्शन रहता है तो फिर वो रिलीजियस बेसिस पे अपने वोट गेन करते हैं, सिंपली वो मैनिपुलेट करते हैं एंड ऐसे करके वोट हासिल कर लेते हैं। तो ये प्लेटो ने उस टाइम पे बोला था, ये पता है लाइक 2020 के टाइम की बात है, आई गेस बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने उस टाइम जब ये आई थी डेमोक्रेसी उस टाइम वॉर्न किया था अबाउट दिस थिंग एंड वी शुड स्टिल थिंक अबाउट इट। बेसिकली वो उनके मतलब वो उन्होंने 3 मेन इश्यूज को हाईलाइट करा था डेमोक्रेसी में। पहले तो अनक्वालिफाइड लीडर्स, हम बोलते हैं ना कि जिसको वोट देने का हक है उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता उनके पास एजुकेशन क्या है वो नहीं है क्या, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हम ना जैसे किसी बिजनेस वगैरह की बात करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, नाउ यू वांट टू हायर सम CEO, सो आप किसी को भी रख लोगे नहीं ना, थोड़ा स्किल वगैरह होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब जो ढंग से डिसीजन ले सके एंड ऑल चीज़ें। वैसे ना डेमोक्रेसी में भी होना चाहिए लाइक कि अब वो हमारे वर्ल्ड कोई वॉर वगैरह आ गया उस पर डिसीजन लेते हैं, बजटिंग वगैरह पे डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन पूरे इसको ना इफेक्टिव होल सिटीजन इस पर हमारा वो वी शुड थिंक अबाउट इट। एंड अनदर इज वॉक रूल होता है डेमोक्रेसी में, अगेन इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग एंड उस बेसिस पे रोल वोट देते हैं। वोट की बात ना राशि भी बहुत कहती है कि वोट के लिए होता है सब कुछ, तो वोट से क्या होगा बेसिकली उनको क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। सो वोट से क्या होता है कि लोगों को पावर मिलती है, उस पावर के लिए लोग अब जब पावर मिलती है तो पावर आने के बाद क्या करेगा इंसान, दे विल इग्नोर द सिटीजंस। सो दिस इज राउल से हमारी एक और फिलोसफर उन्होंने कहा था कि द डे यू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इज द डे यू लूज योर फ्रीडम। देखो जब इलेक्शन होते हैं हमारे आगे पीछे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे जो पॉलिटिक्स वो हमारे आगे पीछे होते हैं, वोट के लिए हम तुम्हें फ्री ये देंगे बोलेंगे एंड सो कॉल योर पॉलिसीज, बट आफ्टर इट नो वन केयर्स अबाउट, उनके पास पावर आ जाती है एंड फर्दर देंगे और अल्टीमेटली दिस लीड टू करप्शन। So what happened? Democracy, complexity and influence of money can lead to unnoticed corruption, election pressure and public disengagement movement. आगे की लाइक जैसे कि हमारे करप्शन भी all this also lead to the ultimately corruption। देखो जो डेमोक्रेसी है ना उसमें डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी वजह से मतलब हमने बोला कि हमें ये चाहिए, फिर वो जाके we put our voice and further वो पार्लियामेंट में जाके the people make it, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। अब उसकी क्या गारंटी कि वो लॉ जो we are asking will pass or not, so all those things also matter। And the third flaw which we come across about the democracy is that it make neighbors political adversaries and make all issues political। adversaries मतलब कि opponent बना देती है। polarization में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी कुछ मतलब उनका अपना स्पेसिफिक ओपिनियन है, वो क्या होता है वो डिवाइड हो जाते हैं कि मैं आई विल सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ एंड कोई दूसरा पर्सन है वो किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, तो ऐसे उनके बीच में डिवीजन होने लग जाता है। और मोस्टली सारे जो हमारे जो देखो पोलराइजेशन क्या है ना, इट्स लाइक एडिंग मोर सॉल्ट एंड सॉल्ट टू द डिश। अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसा टाइम आएगा कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि वो डिवीजन को लीड करता है। एंड जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना ओपिनियन होता है, हम एक पर्टिकुलर ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, एक अपना कोई पर्टिकुलर ओपिनियन को सपोर्ट करता है, तो ऐसे क्या होता है डिवीजन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में। एंड द लास्ट फ्लॉज ऑफ द डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी इनक्योर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो
मैंने बोला डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है। अब उन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, मान लो ना कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, तो उसके लिए जो पैसा है ना, बजट एलोकेट होगा कि कैसे इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, तो उसमें भी ना बहुत टाइम जाता है। अब उतनी देर में जो पैसा वो पड़ा है उसको हम किसी एजुकेशन पर्पजेस के लिए, हेल्थ केयर पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो जब तक कोई डिसीजन ले जाते हैं, बिल इज गोना पास, तब तक वो ऐसे रिमेन रहता ही है। दूसरी चीज़ जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में बहुत खर्चा आता है। आई विल शो यू पैरेंट। सो ये ना 2024 का ही है। कॉस्ट आई थी अराउंड 10 to 15 बिलियन। सो लाइक इज टू मच। अराउंड 1% पे कुछ 1000 कॉस्ट लगा था। अब हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो 1% पे मान लो कि उन्होंने 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स कुछ खर्च किए थे, तो कितना ज़्यादा खर्चा आया होगा। जितना खर्चा इलेक्शन में आता है उससे अच्छा तो हम एजुकेशन एंड और चीज़ों में इन्वेस्ट करें। एंड दूसरी चीज़, अभी खर्चा गया था कैंपेन जो करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने, कितनी बड़ी कैंपेन लगाते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है, पैसे लगते हैं उसमें, लोगों को वोट लेने में भी पैसे लगते हैं, किसने देखा। सो खर्चा बहुत ज़्यादा। और ये सिर्फ अब देखो, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसका खर्चा जो गया वो तो उसके वोट डिड हो गया, मतलब वो जीत गई। अब जो हार गई उसका क्या, उसने भी तो इतने सारे खर्चे किए थे, वो तो सब वेस्ट हो गए ना। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इंडियन की जो हमारे इलेक्शन होते हैं उसमें कि वोटर टर्नआउट हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे 2019 वोटर टर्नआउट क्या होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि वोटर टर्नआउट मतलब कि कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वोटिंग में, मतलब वोटिंग कर रहे हैं ये सब चीज़ें। सो हमारा बढ़ गया लाइक 2019 67% एंड 2024 में भी इट वॉज 60 के एंड में बट ज़्यादा हो गया था। सो इट्स वेरी गुड थिंग, लाइक पीपल केयर अबाउट देयर वोट, वी बिलीव कि एक वोट से देयर विल बी सम चेंजेस। सो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन आता है। अभी हमने देखो पूरे उसमें क्या क्या सीखा, पूरे उसमें भी सी दैट की हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, सिविक स्पेस क्या होता है, जहाँ पे जो लोग हैं अपने वॉइसेस वगैरह को रखते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट द सोशल मीडिया एंड फर्दर हमने कुछ फ्लॉज देखे डेमोक्रेसी में। देखो आप जैसे कहीं हम सोचते होंगे कि लाइक ये डेमोक्रेसी सही है, बट ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तो राइट्स ही नहीं है लोगों को। बट इट डजंट मेक द सेंस कि डेमोक्रेसी इज परफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो इसी पे एक फेमस हमारे, सो इन दिस ऑल्सो विंस्टन चर्चिल ने कमेंट किया था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। अभी तक जितनी भी एग्जिस्ट कर दी है ना, उनसे बेटर है। ये परफेक्ट नहीं है, देयर आर नीड ऑफ द चेंजेस। एंड वो कैसे हो सकते हैं, बाय बीइंग इन्फॉर्म, एजुकेटेड और बाय एजुकेशन। सिंपली जितना ज़्यादा हमें एजुकेशन मिलेगा उसका वी विल यूज अ परफेक्ट यूज ऑफ द एजुकेशन, देन वी कैन मेक अ बेटर सोसाइटी, सो द बेटर डेमोक्रेसी।